Welcome once again to my all dear students in our physics lectures. We are going to study with the nuclear physics, and today is the last point of our nuclear radiations, which is comes with the radioactive elements. It is nothing but the interaction of nuclear radiations with matters and elementary particles of that series. This is the last point, and name is nothing but the pair production and annihilation of electron-positron pairs. So it is the first of all we are going with this topic, that is the pair productions. But firstly I want to tell you here, these 2 points are included in this video. These 2 points, that is pair productions and annihilations of electron positron pairs, because whenever we are going to see the pair productions, automatically we are studied with the annihilation. Why? Because annihilations is nothing but the revert process of the pair productions. So first of all I want to say here, it is the third important mechanism. This is the which one? Pair production. This is the third important mechanisms in the electromagnetic radiations. The electromagnetic radiations absorbed, due to that absorption of electromagnetic radiations by any atom which is present on any kind of the metal, they produces the positron and electron pair. I just draw a simple diagram for your understanding. Suppose it is nothing but the incident radiations. These incident radiations are strikes on these kinds of the metals or any atoms. It produces the positrons, it produces the electrons. It is simple for your understanding. So let us move with the points by points in these lectures. Firstly, it is most important topic. Why? Because this is nothing but the conversion of radiation energy into matter. What I say, it is nothing but the conversion of, that is conversion of radiation of energy into the matter. जो भी इसके अंदर रेडिएशन एनर्जी होगी, वो रेडिएशन एनर्जी क्या होगी? कन्वर्ट होगी किसमें? मास एनर्जी में. किसमें होगी? मास एनर्जी में. सो आई जस्ट राइट हियर द पॉइंट, दैट इज रेडिएशन एनर्जी, दैट इज रेडिएशन एनर्जी converted into mass energy. These are the simple points. And this experiment, this observation, firstly done by the scientist एंडरसन. ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्वेशन किया? जो साइंटिस्ट थे हमारे एंडरसन ने, उन्होंने इन 1932 में, बहुत ही अच्छा किस्सा है इसका, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, फिर कभी ये किस्सा बताऊंगा कि इन्होंने कैसे ये इन्वेंट किया है. तो ये जो महाशय है, ये जो वैज्ञानिक है हमारे एंडरसन, इन्होंने 1932 में एक क्लाउड चेंबर फोटोग्राफी के अंदर से इसकी स्टडी की, और जब इन्होंने स्टडी की तो इनको ये पता चला जो भी रेडिएशन एनर्जी है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो एब्सॉर्प्शन हो रहे थे गैमा रेज, उसकी जो भी रेडिएशन एनर्जी है
वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? मास एनर्जी में। किसमें? मास एनर्जी में। और उसके बाद उन्होंने एक चीज यहां पे देखी, जो भी प्रोसेस हो रही है, ये वाली जो भी प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस होने के लिए जो फोटोन एनर्जी चाहिए, जो फोटोन एनर्जी चाहिए, इट इज नथिंग बट दी ट्वाइस ऑफ MEc²। ये कितनी चाहिए? ट्वाइस ऑफ MEc²। अगर आप इसके अंदर प्रॉपर वैल्यू पुट करते हो, इट इज 9.01 इंटू 10⁻31, और ये जो C है इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम मीडियम। अगर ये प्रॉपर आप काउंट करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू आती है 1.02 MeV, दैट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतनी सफिशियंट एनर्जी है, अगर इतनी सफिशियंट एनर्जी है, तो ही क्या होगा, जो रेडिएशन एनर्जी है वो रेडिएशन एनर्जी क्या होगी? कन्वर्ट होगी किसमें? into the mass energy. So it is simply, this is nothing but what I say, this is nothing but the sum of the rest energies of the member of the pair। जो भी member of the pairs है उनकी ये क्या है? रेस्ट एनर्जी है। दैट्स मीन्स यहाँ पे सिंपल पॉइंट समझने की बात है। यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान में रखना है बच्चों हमें। सबसे पहले that is radiation energy which is converted into mass energy। दूसरा पॉइंट क्या है? जब फोटोन एनर्जी जो है, ये जो फोटोन एनर्जी है वो एक्सीड्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो एक्सीड्स होनी चाहिए। कितनी? ट्वाइस MEc²। ये क्या है? ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। C² क्या है हमारा? दैट इज नथिंग बट दी स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम मीडियम। अगर इतनी एनर्जी है तो ही क्या होगा, हमारा ये जो कन्वर्जेशन है वो कन्वर्जेशन हो सकता है। अब एक सिंपल बात ध्यान में रख लो यहाँ पे कि अब ये कन्वर्जेशन हो रहा है, दैट मीन्स देयर आर दी एनर्जी कंजर्वेशन, देयर आर दी एनर्जी conservations, and by applying the principle of energy conservations it is nothing but the E, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यानी ये काम आएगा में E, ये जो gamma वाला है, is energy is equal to H nu, और H nu हमने कितना बताया था? ये कितना चाहिए हमें? ट्वाइस MEc² चाहिए। और इसके अंदर से क्या प्रोड्यूस होगा? एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होगा। बोल रहे तो क्या होगा? दैट इज एनर्जी कैरिड होगी। और जो भी कैरिड होने वाली जो भी एनर्जी है, जो स्मॉल अमाउंट वाली जो भी कैरिड होने वाली एनर्जी है ना, उसको ये इक्वेशन में क्या कर लो? निग्लेक्ट कर दो। क्या कर लो? इसको निग्लेक्ट कर लो। अगर इसको निग्लेक्ट करते हैं तो क्या होगा फिर? ट्वाइस MEc² बचेगा। क्या बचेगा? ट्वाइस MEc² बचेगा। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन क्या बताता है? दिस इक्वेशन शोज यू द मिनिमम गामा रे एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। मिनिमम गामा एनर्जी, जो भी गामा एनर्जी है, मिनिमम गामा एनर्जी भी हमारे पास होगी, उसके साथ हाँ यहाँ पे क्या होगा? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस हो सकता है। और जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? दैट इज नथिंग बट दी ट्वाइस MEc²। मतलब कितनी? अभी बताया था, मतलब कितनी? इट इज सिंपली सेज दैट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब ये हो गया सिंपल, ये इक्वेशन हो गया। अब क्या करते हैं? जो भी फोटोन एनर्जी हम लोग देख रहे थे, जो भी एक्सेस हो रही थी, एक्सेस होने के बावजूद ही हमें जो भी कुछ मिल रहा था, उसके रिलेटेड हम लोग देखते हैं। अब जो तो फोटोन एनर्जी थी ना, द फोटोन एनर्जी इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इज शेयर्ड ऑलमोस्ट इक्वली। जो भी एक्सेस एनर्जी थी, जो भी फोटोन वाली जो एक्सेस एनर्जी थी ना, वो क्या कर रही है? इक्वल शेयरिंग कर रही है। क्या कर रही है? वो इक्वल शेयरिंग कर रही है। किसको?
दैट इज दी टू पार्टिकल्स को, किसको? टू पार्टिकल्स को। कौन से? इट इज नथिंग बट दी E प्लस और E माइनस। अब इसके अंदर क्या होता है, जो पॉजिट्रॉन होता है, सिंपल, ये पॉजिट्रॉन क्या कर लेता है, स्लाइडली मोर एनर्जी रिसीव करता है, थोड़ी सी ज्यादा। अब थोड़ी सी ज्यादा कितनी है, ये कितनी है, 0.075 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतनी ज्यादा एक्सेस कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। व्हाई? बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट एनर्जीज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अट्रैक्टेड है। देखो यहां पे सिंपल, अब सॉरी इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड नहीं है, पॉजिट्रॉन अट्रैक्टेड है, बराबर है, सॉरी पॉजिट्रॉन अट्रैक्टेड है। अब सिंपल क्या होगा इनसे अंदर, ये जो डिफरेंस हो रहा है, किसमें, फोटॉन्स के एनर्जी इंक्रीज करने के बाद, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके रिलेटेड एक डिरैक्स ने कुछ इक्वेशंस प्रोवाइड किए हैं, डिरैक्स ने। अब फिर से थोड़ा सा ये यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ये बराबर है। तो ये कि मैंने क्या बताया था, ये पॉइंट फिर से समझ लो आप लोग। अब जो भी एक्सेस फोटोन एनर्जी है, बराबर है, अब ये एक्सेस फोटोन एनर्जी क्या करेगा, इक्वली शेयर्ड करेगा, किसमें, फोटोन सॉरी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स में, वो दोनों में, दो पार्टिकल्स में क्या करेगा, वो एक्सेस जो भी उसकी एनर्जी है वो एनर्जी ये दोनों को देगा, बराबर है। अब जब ये पॉजिट्रॉन क्या होगा, पॉजिट्रॉन और ये क्या है, ये निगेट्रॉन है, बराबर है, ये पॉजिट्रॉन है, ये निगेट्रॉन है। अब बराबर आ गया हमारा। अब ये जो पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन क्या करेगा, स्लाइडली एनर्जी ज्यादा लेगा। कितनी लेगा, स्लाइडली, यानी बहुत कम, 0.075, और उससे भी कम पकड़ लो इसको और कम पकड़ लो, 0.075 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ केस में ये ज़्यादा होती है। अब ये 0.0075 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी कम वाली एनर्जी क्या होगी, इसको ज़्यादा मिलेगी और इसको वो कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे, जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज है, वो कैसे होंगे, अट्रैक्टेड होंगे। वो कैसे होंगे, अट्रैक्टेड होंगे। अब जो भी डिफर्स है ये दोनों के अंदर का, जो भी डिफर्स है वो क्या होगा, फोटोन एनर्जी के वजह से इंक्रीज होगा। अब आते हैं डिरैक्स की ओर। अब ये जो डिरैक्स रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन है, कौन सा वाला आप लोगों को पता है, दैट इज E इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस, बराबर है, ये P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C रेज टू 4, ये वाला इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन है डिरैक्स का। ये क्या देता है हमें, ये हमें एनर्जी की आइगन वैल्यू प्रोड्यूस करता है, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की है, जो भी किसकी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की है। अब देखो सिंपली, अब ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी यहां पे कैसी होगी, प्लस और माइनस के फॉर्म में होगी, प्लस और माइनस के फॉर्म में होगी। क्यों? क्योंकि एक पॉजिट्रॉन है, एक निगेट्रॉन है। एक क्या है हमारा, पॉजिट्रॉन है, और दूसरा क्या है हमारा, निगेट्रॉन है। अगर निगेट्रॉन होगा तो उसकी जो भी वैल्यू वेरी होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस MEC स्क्वायर, बराबर है, ये होगी MEC स्क्वायर। रिलेटेड टू दैट, अब जो भी दूसरी वाली है वो होगी प्लस MEC स्क्वायर टू प्लस इन्फिनिटी, इसके रिलेटेड ये क्या होगी, इसके रिलेटेड ये वैल्यू टेंड्स होगी। अब जो भी वैल्यू हमारी चेंज हो रही है ना, वो वैल्यू अकॉर्डिंग टू दैट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स के रिलेटेड ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। अब ये जो इक्वेशंस है, अब ये इक्वेशन जो है हमारा, वो क्या करेगा, हमें कुछ क्लासिफाई करेगा, कुछ बताएगा। सिंपल देखो, हर एक इक्वेशंस हम लोगों को याद रखना है। अब ये क्या क्लासिफाई करेगा, जो भी निगेटिव एनर्जी है, जो भी निगेटिव एनर्जी है,
उसको किसी भी तरह की कुछ भी फिजिकल वैल्यू नहीं है, उसको फिजिकल मीनिंग नहीं है। तो फिर ये कैसे एक्सप्लेन होगा? ये एक्सप्लेन होगा विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। देखो बच्चों, सिंपल, अगर आपको ये पेयर प्रोडक्शन क्या है ये सिंपल एक सेंटेंस में बताना है ना, तो उसको सिंपल बता देना है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर जब प्रोड्यूस होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। ये सिंपल है। चलो अब क्या है, मैंने क्या बताया कि ये सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू एक्सप्लेन होता है, सिंपल। अब ये जो लोवेस्ट करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, लोअर करस्पॉन्डिंग, माना कि जो इलेक्ट्रॉन्स किस में है? रेस्ट पोजीशन में है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? रेस्ट पोजीशन में है, बराबर है। अब ये रेस्ट पोजीशन में है, दैट मीन्स वो दे हैव आल्सो द एनर्जी। क्या होती है इनकी एनर्जी? MEc² होती है, बराबर है। अब ये जो एनर्जी होती है, बराबर है, ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की आपको एक प्रकार का काइनेटिक एनर्जी भी बताती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक ही पोजीशन पे है। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बराबर है। तो ये रेस्ट मास भी एनर्जी अगर आप लोग पकड़ लेते हो, दैट मीन्स these corresponding electrons with various kinetic energy। अब वही डिरैक ने बताया था। डिरैक ने क्या बताया? सिंपल, डिरैक ने सजेस्ट किया हमें कि absence ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और सिंपल एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी absence ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, एक्सटर्नल फील्ड जो हम लोग बोलते हैं, कोई भी ले लो, फिर इलेक्ट्रिक ले लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ले लो, in that all negative energy are states to fill the electrons, states to fill कर लेती है उसको, किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये जो कंप्लीटली फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखो जो भी कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, देखो सिंपल हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला सेक्शन सिंपल देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, यहाँ पे एक डायग्राम मैं उतार लेता हूँ, ये वाली डायग्राम। अब इसके अंदर क्या है? ये इसके अंदर कंप्लीटली निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? निगेटिव ही होंगे। इसके अंदर क्या है? ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। देखो बच्चों, सिंपल है, बहुत खींचना नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में समझना है। अभी जो कंप्लीटली फील्ड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है निगेटिव रीजन्स के अंदर, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट द टोटल एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ये जो टोटल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना, ये कभी भी आपको किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन टोटल एनर्जी के अंदर नहीं देंगे। हम लोगों ने अभी देखा था कि टोटल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा था? विच इज इलेक्ट्रॉन्स इज इन अ रेस्ट। इलेक्ट्रॉन्स किस में थे? रेस्ट में थे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या किए गए हैं? फिल किए गए थे विद द हेल्प ऑफ द absence of external field. That's why they are not participating in the total energy and momentum of the systems. अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो अब इसके अंदर एनर्जी भी हम लोग पता है, कहीं एनर्जी पॉजिटिव रीजन की होगी, कहीं एनर्जी निगेटिव रीजन की होगी। जो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एनर्जी रीजन के अंदर आते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या? जो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एनर्जी रीजन के अंदर आते हैं, दे कैन नॉट मेक अ ट्रांजिशन टू द निगेटिव रीजन। फिर से द इलेक्ट्रॉन्स इन द पॉजिटिव एनर्जी रीजन, द इलेक्ट्रॉन्स इन द पॉजिटिव एनर्जी रीजन कैन नॉट मेक द ट्रांजिशन इन द निगेटिव रीजन। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा? इलेक्ट्रॉन्स है, निगेटिव चार्ज है, तो वो किस में जाने चाहिए? निगेटिव रीजन में चाहिए। लेकिन मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? पॉजिटिव एनर्जी के अंदर है। दैट मीन्स दे आर अट्रैक्टेड, दे आर बाउंडेड, दैट्स वाई दे आर नॉट ट्रांजिस्ट। अब जो भी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस होगा, वो कैसे होगा?
अदर डायरेक्शन में होगा। कैसे होगा? अदर डायरेक्शन में। बट वो कब होगा? जब आपकी फोटोन एनर्जी ये क्या होगी? कम होगी। जो भी रीजन होगा वो रीजन की एनर्जी कैसी चाहिए आपको? ज़्यादा चाहिए, ट्वाइस MEC के स्क्वायर के बराबर। इससे एनर्जी वो कैसी चाहिए? ज़्यादा चाहिए। और दूसरी एक बात क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, और एक सिंपल बात समझ लेते हैं, जो भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे हम लोग, जो भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे फ्रॉम दी निगेटिव रीजन्स के अंदर से जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, कब? जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तब। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद पहले क्या, अब्सेंस में क्या हुआ था? उन्होंने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए थे। याद है ना, मैंने बताया था ये डायग्राम निकालते टाइम कि अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन फील्ड हो जाते हैं। लेकिन जब आप उसको एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? रिमूव हो जाएंगे। कहां से? दिस फ्रॉम द निगेटिव रीजन्स। अब जब वो निगेटिव रीजन से रिमूव होंगे, दैट टाइम द गामा रेडिएशंस और दैट charged particles are contributed or created the electrons in the positive regions। क्या बोल रहा हूं मैं कि जब भी आप इसका एक्सटर्नल फील्ड के इसको अप्लाई करोगे तब जो भी आपके रेडिएशंस हैं, किसके, जो भी चार्ज पार्टिकल्स है, उस चार्ज पार्टिकल के जो भी गामा रेडिएशन है, दे क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पॉजिटिव रीजन्स एंड होल प्रोड्यूसेस इन दी निगेटिव रीजन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रोड्यूस करेंगे? पॉजिटिव रीजन्स में। और होल्स कहां प्रोड्यूस करेंगे, कहां क्रिएट करेंगे? उसके निगेटिव रीजन्स के अंदर। दैट मीन्स पेयर प्रोडक्शन हो रहा है बच्चों। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे सिंपल पेयर प्रोडक्शंस हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन रेस समझ में आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये जो है, ये वाली डायग्राम, इसके अंदर मैंने क्या बताया था? समझो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा। इसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं, बराबर है। और ये वैरीज होते हैं बच्चों। ये वैरीज कहाँ से कहाँ तक होंगे? ये वैरीज होंगे सिंपल ट्वाइस MEC स्क्वायर के अंदर, बराबर है। और ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी आपकी? ये इज नथिंग बट दी E+, ये E0 होगी आपकी, ये E+ होगी या E0 होगी। देखो एक बार समझ लो, E+ होगी या E0 होगी, या इसको और सिंपल तरीके से समझ लो, ये क्या होगी? ये होगी आपकी M0C स्क्वायर के रिलेटेड ले लो इसको। ये होगी आपकी प्लस M0C स्क्वायर, ये होगी आपकी माइनस M0C स्क्वायर। ई कैंसिल कर दो, उसको छोड़ दो, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे देख लेंगे कि उसको क्या करना है। और ये जो एक्सिस बता रहा है ना आपका, ये एक्सिस है आपका एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या एक्सिस है आपका? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का। अब हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे कि जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, जब भी हम उसकी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो उसके अपोजिट रीजन्स में प्रोड्यूस होंगे। होल्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे? निगेटिव रीजन में होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे? पॉजिटिव रीजन्स में होंगे। मतलब क्या आ रहा कि जो भी होल जो है या वैकेंसीज है, बराबर है, वो पार्टिकल्स के पॉजिट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन्स का हो, उसके अंदर हमें वो ऑब्जर्वेबल है। तो ये क्या है कि इट इज नथिंग बट द कॉन्जुगेटेड पार्टिकल्स। ये क्या है? एक प्रकार के कॉन्जुगेट पार्टिकल्स है जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करते हैं एनर्जी। कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करेंगे? देखो, माइनस ऑफ माइनस ई से, बराबर है, माइनस ऑफ माइनस ई सी करेंगे। सिमिलरली उनका मोमेंटम क्या होगा? माइनस ऑफ माइनस पी। क्यों? क्योंकि ये रीजन कौन सा है वो देख लो बच्चों। एंड उसका जो चार्ज है वो भी चार्ज है माइनस ऑफ माइनस ई। फ्रॉम दैट दे आर ए कॉन्जुगेट पार्टिकल्स टू द इलेक्ट्रॉन्स एज इट एक्वायर्स एनर्जी। क्या कर रहे हैं? एनर्जी
एक्वायर्स कर रहे, क्या कर रहे, मोमेंटम एक्वायर कर रहे, क्या कर रहे, चार्ज एक्वायर कर रहे। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हो रही है हमारी कंप्लीट इनवर्स टू दी पेयर प्रोडक्शंस, क्योंकि पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहे थे पहले, अब ये क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहे हैं। दैट मीन्स पेयर प्रोडक्शन हो रहे हैं क्या, नहीं, ये जो पेयर प्रोड्यूस हुए वाले उसको एब्जॉर्व कर लिया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज द एनिलेशन, दैट इज कॉल्ड एज द एनिलेशंस। एंड इन दैट प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन डिसअपियर एंड एनर्जी ट्वाइस mEc² इज रेडिएटेड। ये एनर्जी क्या होगी आपकी, रेडिएट हो जाएगी। चलो बच्चों, इसको और एक 5 मिनट के अंदर ओवरलुक कर लेते हैं, सिंपल ओवरलुक कर लेते हैं। क्या था ये, तीसरी वाली हमारी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, किसके रिलेटेड, इन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एब्जॉर्व के रिलेटेड। ये क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एब्जॉर्व करने के बाद पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती है। दैट मीन्स क्या प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर, पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। और ये किसने बताया था, एंडरसन ने बताया था इन 1932 के अंदर। जो भी उसका फोटोग्राफिक एक्सपेरिमेंट था, उस फोटोग्राफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने जज किया, और जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तब उनको पता चला कि जो भी रेडिएशन एनर्जी है, दिस रेडिएशन एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू मैटर एनर्जी। फिर उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, उसको साथ दिया गया डायरेक्ट्स की ओर से, और फिर हमने क्या किया, एक आइगन वैल्यू वाला इक्वेशन लिया था, E = h nu, और इट इज नथिंग बट द ट्वाइस mEc², इट इज नथिंग बट द प्लस E और माइनस E का एडिशन वहाँ पे हमने लिया था। दैट मीन्स पॉजिट्रॉन एज वेल एज द निगेट्रॉन के रिलेटेड। मगर इसमें एक बात ध्यान में रखिए, ये जो रेडिएशन और एनर्जी है, जो भी रेडिएशन एनर्जी है जिसका कन्वर्जन मैटर एनर्जी में हो रहा है, वो कब होगा, जब आपकी फोटोन एनर्जी एक्सीड्स होगी ट्वाइस mEc² के ऊपर, और उसकी वैल्यू हम लोगों ने देखी थी, इट इज सिंपली दैट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर क्या था, फिर हमने एक एक्सटर्नल फील्ड जो है, अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड में स्टडी किया और प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड में स्टडी किया। अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स और निगेट्रॉन थे वो प्रोड्यूस हो रहे थे, और प्रेजेंट्स में क्या देखा हमने कि ये जो कॉन्जुगेट पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स, वो एक्वायर कर रहे थे एनर्जी, एक्वायर कर रहे थे उसका मोमेंटम, एक्वायर कर रहे थे उसका चार्ज। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे एनिलेशन हो रहा था। और जब एक्सटर्नल फील्ड अब्सेंस थी, तब हम लोगों ने क्या देखा था कि कुछ पेयर्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे, पॉजिट्रॉन और निगेट्रॉन्स के। चलो बच्चों, ये था आपका पेयर प्रोडक्शंस एंड एनिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर्स। आई थिंक ये बहुत इजी है, सिर्फ बात 2 ही ध्यान में रखनी है, रेडिएशन एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास एनर्जी, और पेयर प्रोडक्शन के अंदर पेयर प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के, और एनिलेशन में क्या होती है, वो एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम क्या हो जाता है, एब्सॉर्ब हो जाता है। इसके लिए इसकी जो फोटोन एनर्जी चाहिए वो होती है ट्वाइस mEc², and it is nothing but the 1.02 squares. So thank you so much guys to watching this video, and I think here the interactions of radiations of charged particles with matter and elementary particles की जो सीरीज हमारे चलती आ रही थी 10 या 15 लेक्चर्स की, वो यहाँ पे ख़त्म होती है। अब कल से हम लोग क्या करेंगे, न्यू टॉपिक विथ न्यू चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।